before that let us recall what we studied last year. Okay, last year हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा? We studied about local time and standard time. We also studied about interior of earth, and we also studied about humidity and clouds. Okay, ocean currents, then land use, population, industries, and we also studied map scale and field visit, right? Now this year what we are going to study in geography, let us have a look. Okay, here you can see the content. Okay, content में क्या दिया है? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है एंड जनरल और ह्यूमन ज्योग्राफी है. ओके, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम क्या देखने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. देन फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा? एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, देन एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2, देन प्रेसिपिटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर. ओके, देन जनरल ज्योग्राफी में हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, देन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे. देन ट्रेड, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड फाइनली टूरिज्म. ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स. आपने बहुत सारे मैप्स देखे होंगे, राइट? इंडिया का मैप देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के मैप देखे होंगे, जैसे महाराष्ट्र का मैप देखा होगा. ओके, एंड ऑल्सो वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा. ओके, मैप क्या है? मैप इज मैप प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन, ओके, अबाउट द लोकेशन इन अ वेरी सिंपल एंड विजुअल वे. By having a look at it, we can understand the information that is presented. Okay, मैप में हम देखते ही इंफॉर्मेशन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. You have studied district, state and country maps in the earlier classes in environmental studies and geography subjects. Okay, the main aim of maps is to show the location of a place and distribution of variables. Okay, map का main aim क्या है? To show the location of a place and distribution of variables. Distribution of variables मतलब हम मैप में क्या दिखा रहे हैं? Okay, those are called variables. मतलब किस चीज का डेटा हम मैप में दिखा रहे हैं? Those are called variables. Like population हो गया, rainfall हो गया, temperature हो गया, ये सब क्या है? variables है. ठीक है, वो variables का distribution हम मैप में शो करते हैं. Some maps are prepared with special themes. Such maps are called thematic maps. Okay, through such maps, distribution of various variables in a region is shown. Okay, map को present करने के लिए हम अलग अलग theme use करते हैं, तो उसको thematic map बोलते हैं. Okay, and through such maps, distribution of variables in a region is shown. Okay, जो variables, for example population हो गया या फिर temperature हो गया, उसका distribution हम accordingly show करते हैं मैप में. Okay, distribution of distribution of temperature, rainfall, population, etc. is shown on the map according to the data of these variables. Okay, जो भी variables है उसका डेटा हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर accordingly उसका distribution दिखाते हैं मैप में. These maps are useful to explain the distribution of these variables in the region. Such maps easily bring out the patterns of distribution. To draw distributional maps, distributional map यानी क्या है? Thematic map. Okay, we need statistical data of the variables. हमको distributional map draw करने के लिए statistical data चाहिए, यानी numerical data चाहिए, so that we can present
the given variables on a particular map. Distribution can be shown in the three following ways on a map. Okay, तीन तरीके से हम उसको मैप में प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, थीमेटिक मैप्स को, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को हम तीन वे से प्रेजेंट कर सकते हैं. वन इज डॉट मेथड. ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा छोटे छोटे ऐसे डॉट्स है. तो these dots represents the variables. Okay, next is choropleth method. Okay, choropleth method में you can see color का यूज हुआ है. Okay, tint का यूज हुआ है, मतलब अलग अलग shades of color are used to represent the data, represent the variables. Okay, now see third one, that is isopleth method. Isopleth method में lines यूज किया जाता है to represent the data, to represent the variables. Okay, now let us see first one, that is dot method. dot यानी क्या, जो हम एक full stop dot जो लगाते हैं वो, right? A dot map is prepared using statistical data. While preparing dot maps, only data gathered through counting is used. Okay, while preparing dot map, we can use only those data जिसको हम count कर सकते हैं, जिसको हम numbers में count कर सकते हैं. जैसे कि population हो गया, ठीक है, हम इंसान को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, दिस वे वी कैन काउंट देम. तो ऐसे डेटास प्रेजेंट किए जाते हैं जो काउंटेबल हो. ओके, द वे अ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन, द डॉट्स आर यूज्ड टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मैप. ओके, जैसे जो वेरिएबल्स एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही उसके लिए डॉट का यूज किया जाता है मैप के ऊपर शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल एक्सेट्रा. ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, या फिर एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, या फिर बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए. ओके, जो काउंटेबल है वो. To show distribution through dot method, the value of a dot has to be determined. To do that, the lowest and the highest values of a given variable in a region are taken into consideration. Okay, अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है मैप के ऊपर यूजिंग डॉट मेथड, तो हमको उसके लिए उसका डेटा पहले कलेक्ट करना जरूरी है, और जो डॉट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उसका वैल्यू डिसाइड करना जरूरी है. एंड वो हम कब करेंगे, जब हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल होगा और एक पर्टिकुलर रीजन का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगा. तो अकॉर्डिंगली हम वो डॉट का वैल्यू डिसाइड करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल एक रीजन है, एक रीजन में सपोज 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने सपोज एक डॉट का वैल्यू 1000 रख दिया. ठीक है, 1 डॉट इज इक्वल टू 1000 पीपल. ओके, सो अकॉर्डिंगली उस रीजन में हम लोग कितने डॉट्स बनाएंगे, अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो 10 डॉट्स बनाएंगे. ओके, बिकॉज 10,000 एक मैप के ऊपर 10,000 डॉट्स बनाना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो इसके लिए हमको डॉट को कोई वैल्यू देना पड़ता है, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन अ मैप. ओके, accordingly the number of dots are determined. Okay, and accordingly कितने number of dots हम एक region के ऊपर प्लेस कर सकते हैं वो डिटरमाइन होता है. Also we need to consider the size of the dot, the density of the variable and the scale of the map. We also need to decide the size of the dot and the density of the variable. मतलब जो variable है वो बहुत
ज्यादा है या कम है, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हम लोग उसका साइज डिटरमाइन करेंगे, डॉट का साइज डिटरमाइन करेंगे। एंड ऑल्सो द स्केल ऑफ द मैप, मतलब मैप अगर छोटा है या बड़ा है, अकॉर्डिंगली हम डॉट का साइज छोटा या बड़ा डिटरमाइन करेंगे। ओके, also we need to the number of dots to be given for the value of variable in each sub administrative unit needs to be decided first. The following precautions should be taken while using the dot method for a map. The number of dots to be given, okay, एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक आपने स्टेट लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र लिया, तो महाराष्ट्र के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, ओके, अलग अलग तालुकास है, वो हो जाते हैं सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उस रीजन का पहले हमको वैल्यू डिसाइड करना जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिस्ट्रीब्यूट द वेरिएबल्स। ओके, नाउ लेट अस सी हमको क्या प्रिकॉशन लेना है, यू नो, व्हाइल यूजिंग डॉट मेथड फॉर अ मैप। द साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, जो डॉट का साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब वो सेम होना चाहिए, एक डॉट छोटा तो एक डॉट बड़ा, दिस वे यू कैन नॉट शो। ओके, हर डॉट का साइज सेम होना चाहिए। The distribution of physiography, water sources, transport system, etc. of a region should be considered while placing dots on a map. Okay, एक मैप के ऊपर जब आप डॉट्स प्लेस करते हो तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि वहां पर यू नो वहां का फिजियोग्राफी यानी वहां का लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, एंड ऑल्सो वाटर सोर्सेस, वहां पर कोई वाटर सोर्स तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर एक रिवर है, तो रिवर के ऊपर यू कैन नॉट प्लेस द डॉट, ठीक है, रिवर के ऊपर आप डॉट शो नहीं कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना चाहिए व्हाइल प्लेसिंग डॉट ऑन द मैप। ओके, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी रास्ता है, रोड है, रोड के ऊपर यू कैन नॉट प्लेस डॉट टू शो द ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, then while showing population distribution